Hello dear students, class 3, subject English, division for test number 7. The syllabus is chapter number 8, title McPhee-Gleebe's Pond. You have to learn question answer, book exercise and revise it well and perform well in test number 7 also. Best of luck. Dear students, today we are doing question answer and book exercise of chapter number 8, McPhee-Gleebe's Pond. Okay. Question answer, it is given on page number 53. Chapter 8, McPhee-Gleebe's Pond. New words we have already read, but we are reading once again. Number 1, forbid, tell, not to, do. Besides, in addition to, अतिरिक्त, dared, had courage to do, grisly, fearful, kinch, sure, certain. Number A, answer the following questions. First, where was McPhee-Gleebe's Pond located? McPhee-Gleebe's का pond कहाँ पे locate था? Answer, McPhee-Gleebe's Pond was located behind a big red barn at the edge of a walnut grove shaded by an oak tree. Number 2, who went to fish in McPhee-Gleebe's Pond? कौन फिशिंग करने गया था? Answer, the little Georgie, G capital. The little Georgie went to fish in McPhee-Gleebe's Pond. Number 3, what happened when Georgie felt something in his fishing hook? जब जॉर्जी क्या हुआ जब जॉर्जी को कुछ महसूस हुआ उसके फिशिंग हुक में? फिशिंग हुक मीन्स वी हैव ऑलरेडी रेड, फिश पकड़ने का जो हुक होता है उसको फिशिंग हुक बोलते हैं. आंसर, when Georgie felt something in his fishing hook, then he grabbed the pole and used every muscle to pull out the trout. Trout is a kind of fish. He pulled for 10 minutes and saw that he caught a huge grizzly catfish. जब जॉर्जी को कुछ महसूस हुआ उसकी फिशिंग हुक में, तो उसने ग्रैब किया, पकड़ा पोल को जोर से, एंड उसने पूरी ताकत लगाई टू पुल आउट द ट्राउट. और वो ट्राउट को निकालने में, फिश को निकालने में, एक प्रकार के फिश होती है ट्राउट, उसको निकालने में पूरी ताकत लगाई. ही पुल्ड फॉर 10 मिनट्स, और वो पूरे 10 मिनट तक खींचता रहा. एंड सॉ दैट ही कॉट ए ह्यूज ग्रिजली कैटफिश, और उसको ये मालूम पड़ा कि उसने एक बहुत ह्यूज ग्रिजली कैटफिश पकड़ी है. क्वेश्चन नंबर 4, what did the catfish change into and how many times did it change? कैटफिश किस चीज में बदली और कितनी बार बदली है? आंसर, द कैटफिश चेंज्ड इनटू अ शार्क. कैटफिश चेंज हुई किस में? फर्स्ट शार्क में, एंड देन अ वेल, फिर वेल बन गई वो. आफ्टर दैट इट चेंज इनटू अ सी ड्रैगन, और सबसे अंत में वो सी ड्रैगन बन गई. इट चेंज्ड 3 टाइम्स, और वो कितनी बार चेंज हुई? 3 टाइम्स. नंबर 5, व्हाट डिड जॉर्जी फाइंड इन हिज लाइफ व्हेन ही वोक अप? जॉर्जी को क्या मिला जब वो, उसकी लाइफ में, जीवन में क्या मिला जब वो उसकी नींद खुली? आंसर, व्हेन जॉर्जी वोक अप हिज ड्रीम ही सॉ अ लिटिल गोल्ड फिश ऑन हिज लाइन. जब जॉर्जी उठा उसके ड्रीम से, उसके सपने से, तो उसने एक छोटी सी गोल्ड फिश, उसकी जो फिशिंग हुक था, जिसको लाइन भी बोलते अपन, उसमें मिली. ओके, नाउ पेज नंबर
53. State true or false. Number 1. The pond belonged to McFeely. True. जो तालाब था वो किसका था? McFeely का. McFeely allowed everyone to fish in his pond. क्या उसके तालाब में, उसके पॉन्ड में हर किसी को फिशिंग करने के लिए अलाउ करता था? फॉल्स. नंबर 3. जॉर्जी डिसाइडेड नॉट टू गो फिशिंग इन McFeely's पॉन्ड. जॉर्जी ने निर्णय लिया कि वो नहीं जाएगा कहाँ पर? McFeely के पॉन्ड में फिशिंग करने. फॉल्स. नंबर 4. जॉर्जी वॉज ड्रीमिंग बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड. जॉर्जी जो था वो तालाब के पास में ही सपने देख रहा था. ट्रू. नंबर 5. इन रियलिटी जॉर्जी हैड कॉट अ स्मॉल गोल्ड फिश. असल में जॉर्जी ने एक अंत में जो एक क्या पकड़ी थी? स्मॉल गोल्ड फिश. ट्रू. नाउ नंबर सी. मैच द phrases in column A with those in column B to make a complete sentence. First, the pond belonged to McFeely's. The fishing was prohibited in McFeely's pond. Number 3. Georgie was fond of फिशिंग. जॉर्जी को फिशिंग का बहुत शौक था. नंबर 5. द ग्रिजली कैटफिश चेंज्ड इनटू अ ह्यूज वेल. नंबर 5. द वेल चेंज्ड इनटू अ ड्रैगन, इनटू अ सी ड्रैगन. नंबर 6. जॉर्जी वॉज एक्चुअली ड्रीमिंग बाय द पॉन्ड. नंबर 7. Georgie had fished only an inch long goldfish. Number D. Put a tick mark on the correct option. McFeely's pond was shaded by an apple tree, oak tree, apricot tree. The right answer is oak tree. Now turn the page. Page number 54. Number 2. In order to forbid fishing, McFeely had put up 5 signs, 6 signs, 7 signs. The right answer is 5 signs. फिशिंग रोकने के लिए McFeely ने कितने साइन लगाए थे, कितने संकेत लगाए थे? 5. नंबर 3. जॉर्जी वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ड्रीमिंग और फिशिंग. जॉर्जी वॉज फॉन्ड ऑफ. जॉर्जी किसका शौकीन था? फॉन्ड मीन्स शौकीन, FOND फॉन्ड. किस चीज़ का शौकीन था वो? फिशिंग करने. नंबर 4. जॉर्जी इन हिज ड्रीम सॉ अ वेल एज बिग एज. जॉर्जी ने अपने ड्रीम में एक वेल देखी. वो कितनी बड़ी थी? 5 हाउसेस के बराबर थी, 8 हाउसेस के बराबर थी, या फिर 3 हाउसेस के बराबर थी? 3 हाउसेस इज द राइट आंसर. नंबर 5. व्हेन इन द एंड जॉर्जीज फ्रेंड आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपन, ही विगल्ड हिज ईयर्स, नोज, बोथ A and B. B is the right answer. Grammar. Fill in the blanks with appropriate words. Number 1. Manisha is taller than Ravi. Manisha is taller than Ravi. The right answer is taller. Number 2. Amit is more handsome than his brother. Amit is more handsome than his brother. Number 3. Sunita runs faster than Mukesh. Faster is the right answer. Number 4. All the girls scored more marks than boys.
M-O-R-E, more. More is the right answer. Number 5, our teacher is more beautiful than my brother's teacher. More beautiful is the right answer. These are called comparison degrees. इसको अपन कंपैरिजन डिग्री बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक लोगों में के बीच में ये कंपेयर किया जाता है, राइट. इसके लिए आगे अपन लोग और पढ़ेंगे कंपैरिजन डिग्री. नाउ बी, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विथ अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स बिलो. पैराग्राफ को कंप्लीट करना है एडजेक्टिव से. आई हैव एन एकिंग. नंबर 1 इज एकिंग. इसको एचिंग नहीं पढ़ते हैं, ACHING, एकिंग. टूथ. व्हाट शुड आई डू नाउ? आई शुड गो टू अ गुड डेंटिस्ट. नंबर 2 इज गुड. आई थिंक आई शुड विजिट डॉक्टर लाल. ही हैज़ अ बिग. नंबर 3 is big clinic near my house. He asked me, you are eating a lot of sweet. Number 4 is sweet, mangoes and yummy chocolates. But you should keep your teeth clean. Number 5 is clean after eating them. Now I'll pull out your tooth. After that, he told me, now eat chilled ice cream. Number 6 is chilled ice cream, and after that you can eat soft food. SOFT, soft. Number 7 is soft. Okay. Now read the following notice at the gate of McFee's farm. While writing the notice, the painter made some mistakes. Find out the mistakes and rewrite the correct messages. ये एक नोटिस है जो मैकफी के फार्म में लगा हुआ है, और लिखते समय जो पेंटर था उसने कुछ गड़बड़ कर दी है, और उसी गड़बड़ को अपन को ठीक करना है. McFee's farm notice: no fishing am allowed in a farm. A person whom am caught fishing will be punished. Aren't throw food to the fish. McFee. तो सही जो है अपन नोटिस अभी देखते हैं अपन लोग, एंड यू हैव टू राइट द सेम इन योर fair notebook also and learn also. Notice: no fishing is allowed in the farm, full stop. A person who is caught fishing will be punished, full stop. Don't throw food for the fish, full stop. McFee. So this notice you have to write in the fair notebook also and learn also. Now page number 56, word par. A, name any 5 different kinds of fish you know about. 5 फिश के नाम लिखना है जिनको अपन लोग जानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैट फिश होती है, डॉल्फिन होती है, वेल होती है, शार्क होती है, गोल्ड फिश होती है, सैल्मन फिश होती है. ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो. नंबर बी, फाइंड द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द वर्ड सर्च गिवन बिलो एंड राइट इट इन द ब्लैंक स्पेस. ओके, ये वर्ड सर्च है और इसके अंदर से अपन लोग को एक्वेटिक एनिमल्स के नाम निकाल करके अपन को लिखना है, और ये आपको खुद को करना है. मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा और आपको खुद को ढूंढना है इस वर्ड पजल में. फर्स्ट इज सैल्मन, SALMON. नंबर 2 गोल्ड फिश. नंबर 3 कैट फिश. नंबर 4 शार्क. नंबर 5 व्हेल. नंबर 6
डॉल्फिन, नंबर 7 जेलीफिश। यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ, है ना। ये एक्वेटिक एनिमल्स है और उसको आपको खुद को फाइंड आउट करना है इस पर्टिकुलर में। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। नाउ नंबर सी, राइट द नेम ऑफ द हाउस वेयर द फॉलोइंग एनिमल्स लिव। अपन को नाम लिखना है, ये एनिमल कहाँ पे रहते हैं। लायन, इसको बहुत सारे बच्चे लोयन पढ़ते हैं, LOIN, लोयन। दिस इज रॉन्ग, दिस इज लायन। ओके, तो इसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप क्या करोगे, लायन। लायन कहाँ पे रहता है, डेन, DEN, डेन। नंबर 2 शिप, SHWP, शिप। शिप कहाँ, PEN, पेन। नंबर 3 हॉर्स, हॉर्स, STABLE, स्टेबल। नंबर 4 हैन, हैन कहाँ पे, CWP, कुप। नंबर 5 कैट, कैट कहाँ पे, गैरेज में, GARAGE। रैबिट, रैबिट, BURROW, बरो। डॉग, डॉग, कैनट, KENNEL, कैनट। बर्ड, बर्ड कहाँ रहते हैं, नेस्ट, NEST, नेस्ट। नाउ पेज नंबर 57। इस